So we will start with this chapter today, just for a quick revision. Okay. So सबसे पहले हम constitutional design में देखेंगे what are the basic things what are included in our constitution and specifically in our constitutional design. So when we talk about this, then first of all we must know that what is a constitution, right? What is a constitution के अलावा हम देखेंगे how this democratic constitution is there in South Africa, what is apartheid, right? Apartheid and new constitution, Nelson Mandela, ये सारी चीजों की डिटेल्स हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, right? Then why do we need a constitution? It is good to have or it is bad to have, right? This all things we will discuss in this chapter. Okay. Then constituent assembly, then our Indian constitution we will discuss. Indian constitution is the biggest constitution, I must tell you that. Okay. So when we talk about constitution, constitution का मतलब यहाँ पे होता है that यहाँ पे हमको चैप्टर में साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू अपार्थेड. इट इज एक्सप्लेन, राइट? अपार्थेड जैसे वर्ड्स यूज करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देके. ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ बुक, राइट, जिसका फर्स्ट पेज प्रीएम्बल कहा जाता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर रूल्स, regulation, laws, rights, duties, everything is mentioned for the citizens. Okay. So when we talk about this, it is a supreme law of country. जब हम constitution की बात कर रहे हैं तो it is a supreme law of country, right? We have democratic constitution in South Africa also, and this constitution works completely against apartheid. Apartheid का मतलब the discrimination on the basis of color is known as apartheid, right? जब blacks whites के बीच में difference किया जाता है, जब उनके बीच में साउथ अफ्रीका में difference किया गया, उस टाइम पे ये word आया था apartheid, right? Moving further, after having a meaning of apartheid, apartheid is a discrimination on the basis of race, skin, color, right? See, there are some features of apartheid, वो हम देखेंगे that this is a system जो कि blacks के oppressive use किया गया था, right? Even they were forbidden from living in white areas, जिसमें white लोग रहते थे उस एरिया में भी blacks को रहने के लिए allowance नहीं दिया जाता था. They can work in white areas only if the white people permits them to work there, right? इसके अलावा they were separated from schools and universities, shopping centers, coaching, trains, public places, from everywhere. जहाँ पे whites easily जा सकते हैं वहाँ पे blacks were not allowed, right? And even marriage between persons belonging them, right, white and black, इनकी शादी नहीं हो सकती, right? This was considered as a criminal offense. Okay. Rather than that, there was a restriction of movement from one place to another for them, right? Non-whites, they were not allowed to have votes also. And this policy was denied by human rights. This policy of apartheid denied human rights to the non-whites, right? See, white area है तो वहाँ पे black gift. So this वो मजाक उड़ाने के लिए वो लोग blacks के लिए use करते थे, right? So this was the situation when there was a segregation between two, white and black, right? And instead of this segregation का यहाँ पे आपको proper मतलब दिया गया है जो इस chapter में, that from all the public places or modes of transport, right? ये whites जो है वो blacks से separate किए गए थे. That process is known as segregation, right? Even for visiting the churches, they were not allowed. They were not worshipped, right? जहाँ पे whites worship करते हैं वहाँ पे blacks were not allowed in churches also. And even blacks could not form association to protest against this terrible treatment. This was also the problem for them कि वो लोग unite होके they even can't work out for that, right? So there was no possibility for them at initial to bring some revolution for them. Okay. इवन टॉयलेट्स जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, वो सब भी अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो गया था ब्लैक्स एंड वाइट्स के. ओके.
नाउ बेटा, एज इट वेंट ऑन फॉर मेनी years, बट डेफिनेटली उसका एंड तो आना ही है. So how it ended, right? See, in 1910 अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में बनी थी, जिसमें वो लोग नॉन रेशियल पॉइंट्स के लिए काम कर रहे थे. सो इट वाज नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. मतलब यहाँ पे रेसेस के बेस पे, कलर, जेंडर के बेस पे कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पे नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. एंड दिस मोमेंट वाज intensified in 1950s, right? And in 1960s अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो बैन की गई और उसके लीडर्स जो हैं वो जेल किए गए. ओके, एंड दिस वाज द हाउ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने खुद की आर्मी बनाई इस रेशियल रेजिमे को हराने के लिए, फाइट करने के लिए इनके खिलाफ. ओके, एंड इवन द यूनाइटेड नेशन कमेंडेड दैट पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड दिस वाज द पॉइंट व्हेन दे स्टार्टेड कि अब हमको रिवॉल्यूशन लेना पड़ेगा. एंड एट द एंड ऑफ 1980s इंटरनेशनल आइसोलेशन जो है साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट का, दैट वाज कंप्लीटेड. ऐसे जैसे ही वो शुरू हुआ तो अपार्थाइड का प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका था. एंड देयर वाज अ बैन ऑन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑल द लीडर्स जिनको जेल की गई थी उन सबको जेल से छोड़ दिया गया. दे वर ऑल रिलीज्ड. ओके, अमॉन्ग दैट उनके साथ साथ जो नेगोशिएशंस किए गए थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ, दे स्टार्टेड फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर, जहां पे साउथ अफ्रीकन्स के पास राइट टू वोट आ चुका था, राइट. एंड इन अप्रैल 1994 दिस इलेक्शंस जो है साउथ अफ्रीका में वो नए प्रोविजंस के साथ हेल्ड हो रहे थे. ओके, अलॉन्ग विद दैट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने मेजॉरिटी के साथ एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जीत हासिल की. एंड फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994 एट द मिडनाइट a new national flag was unfurled and there was a new democracy born in the world. How they moved towards a new constitution, right? जैसे ही ये सब कुछ खत्म हुआ, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने स्टेप इन किया, राइट. एंड दैट पार्टी रूल्ड थ्रू ऑपरेशन. ये पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में साथ में रही, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए साथ में रही, सिटीजन्स को सारे राइट्स दिए उन्होंने जो भी कंट्री में थे, राइट. इवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स क्लियर कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे उनको मिल जाएगा, कोई भी इस पॉलिसी के हिसाब से एक्सक्लूड नहीं होगा, राइट. और किसी को भी डेमन के तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, राइट. एवरीबडी विल बी come up, everybody will be sorted out with whatever solution of that problem उनके पास possible हो सकेगा, right. And even whatever they might have done or represented in the past, उस चीज को consideration नहीं किया जाएगा. जो past में हो गया उसको भूल के they have to start a new way out. Okay, एक रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बना जहाँ पे सब लोगों ने पास्ट सफरिंग्स और पास्ट जो भी उनके साथ हुआ वो सब कुछ भूल के और वो लोग आगे बढ़े, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस. इसके साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट नाम देखेंगे इधर, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले सुना हुआ है और काफी कुछ जानते हो, and that name is none other than Nelson Mandela and our father of nation Mahatma Gandhi, right. नेल्सन मंडेला जो है वो मोस्ट एबल इंसान कहे गए थे उस टाइम पे. एफिशिएंट, फार साइटेड लीडर्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, उसमें नेल्सन मंडेला को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था. ये सब कुछ हुआ अपार्थाइड जब एक क्लाइमेक्स पे पहुंचा, तब उनकी लीडरशिप के बेसिस पे हुआ था. एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग इनटू अ वे जहां पे लोगों को जस्टिस मिलने की उम्मीद जागी. एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली उनको ये इक्वालिटी वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखी. एंड इवन उन्होंने 28 years जेल में भी बिताए थे इस चीज को लेके.
ही वॉज, ये जब उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया तब ये अपार्थेड के अगेंस्ट जब हुआ तब उनको इवन 1964 में सेंटेंस टू डेथ भी कहा गया था। एंड इन 90s ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो एक्टिविटीज की उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये साउथ अफ्रीकन रेजिम जो है वो कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका था वर्ल्ड से। एक फेवरेबल एटमोस्फियर क्रिएट कर दिया था 1990 में नेल्सन मंडेला ने। एंड इवन इन 1994 फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है वो हुए थे एंड नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए गए थे, राइट। सी बेटा, नाउ वी विल सी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए कोशिश की। नाउ वी विल सी कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए होना चाहिए ताकि लोगों के मन में इक्वालिटी और बढ़ी रहे, राइट। एंड दे मस्ट नॉट बी क्रिएटेड दैट व्हाट काइंड ऑफ सफरिंग्स दे आर फेसिंग, उसके लिए एक उनके पास एक लीगल अलाउंस, लीगल पॉलिसीज होनी चाहिए कि ये अगर हो रहा है तो हमको ये एक्शन लेनी है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसे रिटर्न रूल्स है जो कि हर एक इंसान को फॉलो करना पड़ता है कंट्री में जो भी रह रहे हैं। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलेशनशिप, जो लोग उस टेरिटरी में रह रहे हैं जिनको सिटीजन्स कहा जाता है, उसकी रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है, राइट। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ओके। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये लोगों में ट्रस्ट बिल्टअप करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है, वॉट एवर बेसिक नेसेसिटीज एल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग टू लिव टुगेदर, वहां पे कोशिश करता है वो, राइट। इवन इट स्पेसिफाइज कि गवर्नमेंट किस तरह से कंस्टिट्यूट की जाएगी, किसको पावर दिया जाएगा, कौन डिसीजंस लेगा, राइट। एवरीथिंग इज बीन मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट, इसके अलावा इसके पास लिमिट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर्स के लिमिट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो कल के कल सब कुछ चेंज कर दे। नो, देयर आर सम लिमिटेशंस टू द गवर्नमेंट कि अगर उसको कुछ चेंज करना है तो वो सिटीजन्स के राइट्स के लिए सोच के फिर कुछ चेंज करेगी, क्योंकि ये हमारा हक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये हक है कि गवर्नमेंट हमको बताएगी कि वो क्या चेंजेस कर रही है या वो क्या पॉलिसीज कर रही है, उसके बाद वो उस पॉलिसी पे काम कर सकती है। इवन जो भी एक गुड सोसाइटी बनाने के लिए उनको जो भी एस्पिरेशंस चाहिए, इवन दैट आर टू बी टोल्ड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स, राइट। देयर इज सम रियलिटी that all countries have constitutions, but सबका democratic constitution नहीं है। India is having a democratic constitution, right? All countries that are democratic will have constitutions, but all countries that have constitutions are democratic, ये जरूरी नहीं है। Please remember this thing, ठीक है। जो भी countries democratic हैं उनके पास तो constitution compulsory होगा, लेकिन जिन कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। ओके, इवन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि ब्रिटेन के खिलाफ था, अमेरिकन ने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया और रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल जो है उनका भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ। और उसके बाद डेमोक्रेसीज जो है इन सब का एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी हो गया, राइट। हर कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट करती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा नेशन बनाता है, एक ऐसी चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उस नेशन का होता है, उसमें रिटन लॉज जो कि लोग वहां पे रह रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करते हैं, और गवर्नमेंट कैसे कंस्टिट्यूट होगी ये सारी चीज भी उसमें स्पेसिफाई की जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो भी कितने लिमिट्स में होंगे वो चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्लोज की जाती है, राइट। इवन इट एक्सप्रेस मेनी काइंड ऑफ एस्पिरेशंस about creating a good society. So next is how this making of Indian constitution started, right?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और किस तरह से, क्या सर्कमस्टेंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए फेस करने पड़े। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में से, राइट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ह्यूज और डाइवर्स, हमारी इतनी बड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी बात नहीं थी, राइट। और इसी चीज को सॉल्व करने, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो सबसे अच्छा, इफेक्टिव और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही बना, राइट। लोग जो थे इंडिया के, दे स्टार्टेड इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स, जहाँ पे सिटीजन्स के ध्यान में रखा गया वो सब। कंट्री एक ऐसी बॉर्न हुई, एक पोर्शन के पार्टीशन के हिसाब से, रिलीजियस डिफरेंस के हिसाब से एटलीस्ट 10 लाख पीपल जो है दोनों साइड, बॉर्डर्स के दोनों साइड पार्टीशन के रिलेटेड वायलेंस करते हुए मर गए थे, राइट। एटलीस्ट 10 लाख, राइट। इट इज जस्ट अ टेंटेटिव दैट। इवन ब्रिटिश जो छोड़ गए थे रूल्स को प्रिंसली स्टेट्स को, उनको भी डिसाइड करना पड़ा वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडियन और विथ पाकिस्तान टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उनको ये भी सोचना था, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना था वो बहुत ही डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क था, राइट। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो है वो आगे के फ्यूचर के लिए, अबाउट द फ्यूचर, दे वर वेरी मच एंशियस अबाउट दैट, राइट। और इसीलिए उन्होंने एंशाइटीज भी दिखाई थी कि उनका कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन, सोवियत, कनाडियन, साउथ अफ्रीकन, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सारे सोर्सेस को कलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ हमने सिलेक्ट किया था। और इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को देख के, समझ के, और हम लोग चाह रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाएं ताकि ये सारी चीज़ों में जो भी अलग अलग चीज़ें कहीं पे कुछ रह गई हैं उन सारी चीज़ों को सम अप कर सके और हम बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था फॉरेन रूल के खिलाफ, राइट, बल्कि ये स्ट्रगल हमारी कंट्री के लिए भी था और एक नई सोसाइटी, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करने के लिए भी एक स्ट्रगल शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते। अवर फेमिलियरिटी विद दिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं कॉलोनियल रूल के, दे इवन हेल्प्ड अस टू डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। एंड दिस एक्सपीरियंस जो भी इंडियंस को गेन हुआ ये सब ब्रिटिशर्स के साथ काम करके या इंडस्ट्रीज के साथ काम करके, दिस वाज एक्चुअली यूजफुल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट। इट बिकम्स वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। काफ़ी सारे जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ों से इंस्पायर भी हुए थे और उससे उन्होंने सीखा भी कि कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है ताकि ये वॉर जैसी सिचुएशन जो है फ्रांस की, रशिया की जैसे हुई वैसी हमारे देश में ना हो, राइट। इवन जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए में, उस चीज़ से भी उनको मोटिवेशन मिला, इसीलिए they incorporated some good points of the constitution to make our Indian constitution। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो उनको मिला हमारे लाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो है ना, नेहरू जी, राइट, उनसे। और जो दूसरे 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे 1928 में, उनसे सबसे ज्यादा एस्पिरेशन मिली। इवन जो आउटलाइंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाए थे। कराची सेशन जब 1931 में हुआ उस टाइम पे, राइट, मोतीलाल नेहरू, बी.आर. आम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, ये सब महान लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड थे। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को जो साथ में काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, that particular group of people is known as Constituent Assembly, and this assembly was set up under cabinet mission plan in 1946. It had 389 members,
राइट, जहां पे प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हुए 292 मेंबर्स थे, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए 93 मेंबर्स थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हुए 3 एंड बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ 1 मेंबर था। राइट, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो December 6, 1946 पे 46 में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन सिलेक्ट किए गए थे। राइट, इंडिया और पाकिस्तान इन चीज़ों के डिवीजन को, जो भी हमारी करंट उस टाइम पे असेंबली बनी थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था। 299 मेंबर्स ने मिलके ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स ने मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट हो गया था, लेकिन जैसे कि नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि रिपब्लिक डे पे ही हम उसको 26 जनवरी को हम इवेलुएट करेंगे, उसका रेडी होने के बावजूद दे वेटेड फॉर 2 more months एंड दे स्टार्टेड टू इवेलुएट ऑन 26 जनवरी, जिसको हम आज तक रिपब्लिक डे मनाते हैं। राइट, देयर वर सम मोर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्लीज रिमेंबर। हम लोग ये कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली ने बनाया उसमें 69 इयर्स हो गए हमको ये एक्सेप्ट करते हुए, उससे भी ज्यादा हो गए, 72 से ज्यादा हो गए। काफी कंट्रीज जो हैं उनको रीराइट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को, एक फ्रेश लुक देना पड़ा उनको, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स थे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स और मेजर पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। लेकिन कुछ कंट्रीज में तो ऐसा भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया, उसको कोई फॉलो करता नहीं है। राइट, लेकिन इंडिया में इसका पूरा एक्सपीरियंस अलग है। इंडिया में हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सोशल ग्रुप, हर एक सोसाइटी मेंबर इसको एक अनयूजुअल अचीवमेंट मानता है और उसको फॉलो करता है। राइट, इंडिया इज हैविंग द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, बहुत ही मेन मेंबर्स जो थे हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स के, उन्होंने ये बनाया था। जियोग्राफिकल शेयर्स जो हैं उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था। काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज, ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन के लोग इंक्लूडेड थे इसको बनाने में। तो हर एक जन को उनके कहीं ना कहीं पॉइंट्स मिलते गए और उनका एक बेटर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, जहाँ पे हर एक को इक्वली राइट्स अपने प्रोटेक्टेड मिलते गए। ड्राफ्टिंग कमिटी जो है उनको B.R. आम्बेडकर को दिया गया था ड्राफ्ट का पूरा डिस्कशन। ओके, काफी सारे राउंड्स हुए थे जहाँ पे डिस्कशन हुआ था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज बाय क्लॉज। राइट, 2000 अमेंडमेंट्स कंसिडर किए गए थे। हर एक डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट कर रहे थे, हर एक वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हर एक चीज को बहुत ही प्रिसाइसली ऑब्जर्व किया गया था। एंड दिस ऑल वेर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जब ये प्रिंट किया गया तो ये डिबेट्स जो हैं वो 12 वॉल्यूम्स में, मतलब 12 पार्ट्स में थे। और ये डिबेट्स जो हैं उनको प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, दे वेर द रैशनेबल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन उनको इसीलिए भी हेल्प किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग लोगों को पता चले। राइट, B.R. आम्बेडकर was the chairman of drafting committee. Okay, for this constitution जो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो थे राजेंद्र प्रसाद। फॉर ड्राफ्टिंग कमिटी B.R. आम्बेडकर was the one who was appointed as a chairman. 26 नवंबर को एक्सेप्ट होने के बावजूद इट वाज इवेल्युएटेड, इनएक्टेड ऑन 26 जनवरी। राइट, काफी लोगों का दिमाग इसमें इंक्लूडेड है। ओके, वी हैव मैनी मोर मेंबर्स, जैसे हम आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे तो आपको मिलेंगे। वी हैव मैनी मोर मेंबर्स, जैसे कि कृष्णाचारी। राइट, different members were included for making this constitution. Then Sarojini Naidu also we have. Okay, and isko they did not see it as a sacred, but this was acceptable and this was effective for all.
राइट. सो दे मेड मोर प्रोविजंस टाइम टू टाइम. जो चेंज हो रहे हैं प्रोविजंस, उन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए दे स्टार्टेड ड्राफ्टिंग इन अ वे दैट they made all the provisions to incorporate changes from time to time, and these changes were called constitutional amendments. Okay. amendments के जो procedures हैं वो constitution में भी थे. 3 categories थे उसमें. फर्स्ट कैटेगरी amendments जहाँ पे simple majority of members जो present हैं वो vote करेंगे before sending for the president's assent. सेकेंड में ऐसा था दैट amendments रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी. और थर्ड में ऐसा था दैट इट शुड हैव 50% ऑफ एटलीस्ट स्टेट लेजिस्लेटर्स. राइट. इन सारी चीज़ों को, ये 3 अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स है वो आगे इवेलुएट के लिए गए. ओके, आई मीन वो अप्रूवल के लिए गए एंड डिबेट्स में पॉसिबल हो पाए. ओके. एंड महात्मा गांधी जैसे लीडर्स जो हैं वो इसको ड्राफ्ट करने के लिए तो नहीं इंक्लूडेड थे, बट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर आम्बेडकर, इन सब के व्यूज, इन सब के जो ड्रीम थे कि हमको कैसा देश चाहिए हमारा, और उन्होंने जो सोचा था कि हम मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे नेशन के लिए, उस चीज में कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया दैट देयर ड्रीम्स एंड व्यूज वेर स्पेशली टेकन केयर ऑफ. राइट. इवन द प्रीएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट टॉक्स अबाउट फिलोसॉफी वेयर completely our constitution is dependent on. Right. Preamble is considered as the soul of our Indian constitution. Right. Sovereignty, justice, equality, fraternity, secularism, democratic, republic, this all terms are included in our preamble. Right. All things combinedly and sum up make our constitution, and this is how a constitutional design was been done, how a constitutional pattern was been decided, and finally it was evaluated. Okay.